Now it started. Cool. So I think आज भी कुछ लोग है जो first time attend कर रहे हैं. Could you please raise a hand जो लोग first time you're attending this batch? The new people. Okay. Vivek, Suraj, Sindhuja, Yagnik, Kogri, Bhaven, Pranjali. Cool. Thanks. तो क्विकली मैं एक ब्रीफ एंड ओवरव्यू रिकैप बता दूं अभी तक वी हैव कवर्ड एंड आगे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं. कुछ चीजें आज मेरे को आप लोगों को बतानी भी. इसके पहले मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपने देखा होगा इवन आई पोस्टेड इन द ग्रुप regarding the job and referrals and these stuff. So actually, I have a good network in tech communities and over LinkedIn. I hope you already find me over LinkedIn, right? So because of LinkedIn and because of my personal network, and I'm actually very active in last 5 6 years in the tech communities. So decent network I have. So if you are really looking for a job and if you are really good with your resume and LinkedIn profile, and also you are well prepared for the interviews, then it makes sense to take a referral. So, so basically, recently I posted for the Practo. Actually, Practo, I have colleagues, ex-colleagues in Practo. So for Practo, if you're interested, let me know. Already, I think लोगों ने ping किया है मुझे. But yeah, ऐसे ही और companies के लिए I will let you know. Like Recro also is one of my ex-company. Uh, Anyone interested for Recro, let me know. I will share the job ID, job link in the group. ठीक है. तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं कुछ क्वेश्चन सेट पूछूंगा वहाँ पे. some questions I need to ask whoever is interested. तो उसका आप एक बार रिप्लाई कीजिएगा. then accordingly I will shortlist the profiles and then will forward it to the concerned person. Cool. और कुछ लोगों की क्वेश्चंस यही है, मतलब अभी भी आई एम गेटिंग कि पीपल आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग कॉल बैक्स. तो उस पर मैं 2 3 पॉइंट बोलना चाहूंगा कि because I see people actually struggling with either they are not getting interview calls at all or they are getting but not able to clear. So not able to clear, that makes sense. उसी के लिए this we are doing all these stuff कि we actually preparing for the interviews, right? We actually preparing or leveling up ourselves in basically specific to iOS. DSA also we are planning. We'll come to DSA part later on. Or what we are planning, I will let you know. But for now, our main focus is the core and advanced iOS stuff. So far we what we have covered: multi-threading, GCD, a bit of NS operation, and this whole dispatch barrier, semaphore, and all that stuff. जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक मल्टी थ्रेडिंग वाले सेशंस के टाइम नहीं थे, विच यू टेकन अराउंड 2 3 weeks बैक, तो प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी ग्रुप में मिल जाएगा आपको. हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन एक बार आप सब लोग चेक कीजिएगा. वहाँ पे सारे रिलेवेंट लिंक्स मेंशन्ड है. ऑल्सो जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ ये रिकॉर्डेड वाला, उसके वीडियो के लिंक में भी, सॉरी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑल रिलेवेंट लिंक्स आर मेंशन्ड. तो देयर यू कैन फाइंड आउट द लिंक्स. ठीक है. एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. तो स्टिल अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है या कहीं पे मिसप्लेस हो गया या मिस है, तो let me know. I will share it again or I will update in the description. So you can go through the multi-threading sessions as well for specifically GCD, serial concurrent queue, dispatch barrier, semaphore, and NS operations. And apart from that, today we are planning for async await and this SwiftUI navigation view life cycle stuff. और उसके पहले SwiftUI में what we have covered, the basic topics, very basic, view modifiers and your this list, view modifier, list, and your state binding topic. We haven't touched so far this observable object or environment वगैरह. These were actually planning in the coming sessions. So far we covered only these very basic topics. अगर आप लोगों ने SwiftUI थोड़ा भी देखा है, if you ever seen the code or a little bit go through SwiftUI, I think you already know these topics a basic bit far. But still जिन लोगों ने SwiftUI अभी तक टच भी नहीं किया है, तो वो लोग प्रीवियस सेशंस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. कुछ नोट्स भी मैंने दिए हैं, वो नोट्स एंड सेशंस को आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं, तो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस टॉपिक्स. ओके. उसका ही प्लेलिस्ट का लिंक SwiftUI के सेशंस का you will find in the group and in the description and the video link descriptions. Cool. Yeah. So yeah, welcome everyone, the new people, and let's start with this. But before that, I'm addressing this point कि
व्हाट इफ यू आर नॉट गेटिंग ए कॉल, यू आर जस्ट अप्लाइंग एंड अप्लाइंग, आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, आप नौकरी, इंडीड या वट एवर जॉब पोर्टल कंपनी स्पेसिफिक, और एचआर को आप मेल कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो, जितना मैं समझ पाता हूँ, मुझे कॉल बैक्स आते हैं, क्यों आते हैं उसके पीछे मुझे कुछ रीजन समझ आते हैं, और जिन लोगों को नहीं आ रहे हैं उनके पीछे मुझे एक रीजन समझ आता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो व्हाट आई फील कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिज्यूमे। फर्स्ट थिंग, रिज्यूमे तो ऑलमोस्ट सब लोगों का ही सही होता है, कुछ कुछ लोगों का इशू है। तो जिन जिन लोगों के मैंने रिव्यू किए हैं रिज्यूमे, मैंने उन लोगों को पर्सनली पिंग किया है, या मैंने कई लोगों से वन ऑन वन भी डिस्कस की हैं चीजें, व्हाट्सएप पे या कॉल पे, डिपेंड्स। बट हाँ, कुछ लोगों से अभी तक नहीं भी हुई है बात, तो मैं उन लोगों से भी कनेक्ट करूंगा, या आप लोग मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं कि कुड यू प्लीज रिव्यू माई रिज्यूमे वंस करके, तो आई विल क्विकली रिज्यूम, मैं रिव्यू कर लूंगा उस चीज को। बट मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं, अगर आप लोगों का रिज्यूमे 3-4 पेजेस का है तो प्लीज उसको 1 से 2 पे लेकर आ जाइए, ठीक है। मैक्स 1 से 2 पेजेस रिकमेंडेड, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए काइंड ऑफ। तो उसमें क्या करते हैं कुछ लोग, गलती ये करते हैं कि दे एक्चुअली मेंशन ऑल द प्रोजेक्ट लिस्ट, और उस प्रोजेक्ट को इतना बढ़ा देते हैं कि किसी किसी का मैंने 6-5 पेजेस का भी देखा, मतलब 5 to 6 पेज का, या 7-8 भी खींच दिया, वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो गया। बहुत रेयरली होता है वैसे वो, बट 3 पेज का भी अगर लोग खींच रहे हैं तो इट्स रियली नॉट गुड, रियली नॉट गुड। क्यों? उसके पीछे एक बार रीजन समझना। आप ये सोचते हो कि जिसको मैं रिज्यूमे भेज रहा हूँ वो बंदा बहुत फ्री है और उसके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो बैठ के आपका एक एक रिज्यूमे का एक एक पॉइंट पढ़ेगा, उसमें पैराग्राफ भी लिख दिया अपने 5-5 लाइन के, वो पैराग्राफ भी पढ़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा ना गलत जा रही है। पॉइंट ये है, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम है नहीं, इस बात को आप समझो। उसे जो भी अच्छी, आगे मैं अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इवन छोटी कंपनीज में भी ये सीन है, बट लेट्स कंसिडर फर्स्ट अ डिसेंट गुड कंपनीज, जहाँ पे अपने जैसे, जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे जैसे और भी कैंडिडेट्स है बहुत सारे, राइट? ये तो आप समझते हो, हम लोग अकेले नहीं है मार्केट में। तो अभी किसी भी अच्छी कंपनी का एग्जांपल ले लो, अगर किसी अच्छी कंपनी ने ओपनिंग डाली, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप इसी का ले लो, सपोज जोमेटो का ले लो, ठीक है, या उबर का ले लो, इनकी अभी ओपनिंग चल भी रही है राइट नाउ। तो अभी ऐसी कोई कंपनी ओपनिंग डालती है, कोई भी अच्छी सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, कोई सी भी ले लो, डजेंट मैटर, तो लिंक्डइन पे डालती है वो, या अपने पोर्टल पे डालती है, या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे डालती है, अगेन डजेंट मैटर, बट द पॉइंट इज जहां भी डालेगी, विद इन फ्यू आवर्स या विद इन अ डे में 500 से 1000 एप्लीकेशन मिनिमम आ जाती है। उससे ज्यादा ही आती है, मैं फिर भी कम फिगर बता रहा हूँ, 1000 सपोज करो एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1000 एप्लीकेशन में से अभी वो एक एक का रिज्यूम अगर पढ़ने बैठ गए तो भैया फिर तो समझ लो, हो गया कल्याण। इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी। अब आप बोलोगे कि भाई वो ये कर लेते हैं हम लोग एटीएस वगैरह, तो एटीएस इतना हेल्प नहीं। एटीएस सिंपली हेल्प यू आउट टू फिल्टर आउट फ्यू रिज्यूमे। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगेन हम लोग के सारे ही जिन भी मोस्टली यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस बैच है, क्राउड है यहाँ पे, जैसे मोस्टली 3-5 ईयर या 7-8-10 ईयर वाले लोग हैं मोस्टली, ये 10 ईयर प्लस वाले भी हैं यहाँ पे कई। तो पॉइंट इज कि हम लोग के रिज्यूमे में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट सभी के रिज्यूमे में यू हैव ऑल द बेसिक कीवर्ड्स, ऑल द रिलेवेंट कीवर्ड्स काइंड ऑफ। तो थोड़ा कीवर्ड चेकिंग होती है, ठीक है, दैट मेक सेंस। और उसके अलावा रैंकिंग एल्गोरिथम्स नहीं है सच, ये एक बात को ध्यान रखो। इवन अब 1000 प्रोफाइल किसी प्लेटफॉर्म पे किसी रिक्रूटर को मिल गई, जैसे मैंने बोला कंपनी पोस्ट करती है रिक्रूटर अकाउंट से, लिंक्डइन का एग्जांपल ले लो, और वहां पे आपको दिखता भी, देखो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने अप्लाई कर दिए उसमें, फिर वो ये भी दिखाता है एनालिटिक्स, हो सकता है कि फ्री अकाउंट में शायद ना दिखाता हो, प्रीमियम में दिखाता है। तो आप लोग चेक कर सकते हो एनालिटिक्स की, हर जो आपके एनालिटिक्स वहाँ पे दिखते हैं कि 20% सीनियर पीपल जिन्होंने अप्लाई किया उनकी सीनियरिटी बताता है वो, 30% फ्रेशर्स ने अप्लाई किया, 40% सीनियर्स ने किया, इस तरीके से वहाँ पे 3 सेक्शन। तो पर अगेन इसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि 1000 एप्लीकेशन में से मान लो एटीएस लगा के मैंने थोड़ा फिल्टर भी कर दिए, 100-200 रिज्यूमे मान लो बहुत ही खराब थे, उन्होंने ऐसे कुछ कीवर्ड्स डाले ही नहीं, लाइक सॉफ्टवेयर यूआई किट कंबाइन, एमवीवीएम वाइपर, इस तरह के कीवर्ड मैं कह रहा हूँ जो बहुत फेमस है, जनरिक है, जो कि नॉर्मली एक आईएएस इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होता है कि उसके रिज्यूमे के अंदर ये कीवर्ड्स होने चाहिए, या वो उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए इसका मतलब उसके रिज्यूमे में भी होना चाहिए वर्ड, तभी द अदर पर्सन कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इसको ये आता है, या इसने मेंशन किया, इसका मतलब ही नो अबाउट दिस, राइट? तो पॉइंट इज कि ये बहुत ही कम ऐसे रिज्यूमे मिलेंगे जिसमें एक्चुअली कीवर्ड्स नहीं है, नॉर्मली हम सबके रिज्यूमे में ये होंगे, कॉमन ही होगा नॉर्मली। तो एटीएस वाला रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब बचे आपके मान लो 1000 में से 800 एप्लीकेशंस। अब अगेन हार्डली ओपनिंग इज 1 और 2 और मैक्स 3, इतनी ओपनिंग निकलती नॉर्मली।
अब इतनी सी ओपनिंग के लिए इतनी सारी एप्लीकेशंस, सो दैट्स द मेजर कंसर्न। ठीक है, तो अब कैसा है कि वो काइंड ऑफ वन ऑन वन जाएंगे और उसमें अगेन थोड़ा सा सॉर्टिंग फिल्टर करते हैं वो बेस्ड ऑन करंट सिटी, लोकेशन, नोटिस पीरियड। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रेफरेंस इमीडिएट जॉइनर्स को मिलती है। कोई भी कंपनी चाहती है कि इमीडिएट जॉइनर्स मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ये उनका नोटिस पीरियड अगर 15-20 दिन ही बचा है, ऑलरेडी वो सर्विंग है नोटिस पीरियड पे, ये 30 डेज है, इस तरह के लोगों को पहले प्रेफर करते हैं, नो डाउट। बट हर जगह नहीं, मतलब डिपेंड करता है, बट हाँ ये एक प्रेफरेंस मिलती है। तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा सॉर्टिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस पे। उसके अलावा प्रायोरिटी या सॉर्टिंग किस बेसिस पे कर सकते हैं, पैकेज पे, आपका लास्ट पैकेज, एक्सपेक्टेड पैकेज, नोटिस पीरियड, करंट सिटी, ओके टू रीलोकेट वाला चीज। ठीक है, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अगेन आपसे पोर्टल्स में पूछ लिया जाता है जब लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो, या नौकरी वगैरह पे भी इस तरह क्वेश्चंस पहले ही पूछ लेते हैं वो लोग, जिस बेसिस पे वो फिल्टर कर सके। ठीक है, अगेन दैट इज फाइन। बट अब मान लो आप सारे क्राइटेरिया में फिट बैठ गए हो और अगेन वो 800 में से 500 या 400 एप्लीकेशंस में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, स्टिल 400 अगेन इट्स अ बिग काउंट। तो अब पॉइंट ये है कि वो फिर वन बाय वन जाएंगे, एक एक का रिज्यूमे खोलेंगे, तो अब बहुत कम टाइम है एक्चुअली। तो हार्डली द एचआर और द रिक्रूटर और द पर्सन वॉट एवर हु इज इट, और योर मैनेजर, हायरिंग मैनेजर, उनके पास हार्डली 10 से 20 सेकेंड्स है टू गो थ्रू योर रिज्यूमे, और मैक्स 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड और 20 सेकेंड के लिए अगर आप मुझे 4 से 5 पेज का रिज्यूमे दे दोगे, तो आप खुद सोचो, आप भी उनकी जगह होगे तो आप कितना उसको कैसे देख पाओगे, और वो कितना अगेन क्लीन होना चाहिए। वो अगर उसमें क्लटर है या उसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो एक्चुअली वो नेगेटिव वे में वर्क करता है। इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, इट्स अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, दैट्स वाई इट्स रिकमेंडेड कि रिज्यूमे शॉर्ट क्रिस्पी रखना, 1 से 2 पेज मैक्स, 2 पेज से ज्यादा का रिकमेंडेड ही नहीं है। तो आज मैं चाहूंगा जो भी लोग के अगेन 3, 4, 5, 6, 7 पेज के रिज्यूमे है, उसको 2 पे लेकर आ जाओ। 1.5 से 2 पेज के बीच में होना चाहिए नॉर्मली, उससे ज्यादा मत रखो, उससे कम ही रखो या उतने पे ही रखो। ठीक है, दैट इज हाईली रिकमेंडेड, जिससे ये रिकमेंडेड है फॉर्मेट, और ओवरऑल वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ये। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कंट्री, कहीं भी चले जाओ किसी भी इंडस्ट्री में, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ, कहीं भी डोमेन या कंट्री वाइज या रीजन वाइज, डजेंट मैटर, रिज्यूमे का एक स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा फॉलो करो आप। ठीक है, फिर बात आती है टेम्पलेट्स की थोड़ी सी। तो मैं 2-3 रिज्यूमे अगेन रेफरेंस के लिए शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो वो आप देख सकते हो। क्विकली मैं एक दो दिखा भी दूं, अभी भले मैंने पहले भी किया है, बट नए लोग तब नहीं थे यहाँ पे कुछ लोग। तो एक जनरिक टेम्पलेट है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, बट बहुत क्लीनर एक्सपीरियंस है। सिंपली उसमें आपका डिग्री, टाइटल और वो मेंशन होता है, और कुछ सेक्शंस होते हैं, बस उतने ही रखने हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेक्शंस डालने की जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है उसको मत डालो। इस तरह की चीज, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता दूं, जो लोग गलती करते हैं थोड़ा सा, पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन डाल देता है। तो मैंने पहले ही बताया, पर्सनल डिटेल में हमें नहीं जानना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। आपको आपका एड्रेस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पोस्टल एड्रेस बिल्कुल मत डालो, सिर्फ सिटी, लोकेशन, कंट्री एक थोड़ा सा 2 वर्ड्स में डाल सकते हो, पूरा घर का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो, आप रिज्यूमे भेज रहे हो किसी कंपनी को, किसी कंपनी को आपको कोई ऑर्डर करके कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं भेजना, राइट? तो उसको एड्रेस क्यों दे रहे हैं हम लोग, ना उसको चाहिए ना उसने मांगा, तो देने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी होती है। फिर उसमें लोग और भी 2-3 चीजें ऐसी डाल देते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है, तो इस तरह की चीजें रिमूव करो। पर्सनल डिटेल वाला जो सेक्शन है ना, उसकी जरूरत है नहीं है सच। जो लोग अलग से डाल देते हैं, एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, अगेन डजंट मेक सेंस। ठीक है, इस तरह की चीजें, तो इस तरह की जो भी चीजें आप अवॉइड करें। और बाकी रिज्यूमे थोड़ा मैं रेफरेंस के लिए अगेन डाल दूंगा, अभी मैं नहीं जाना चाह रहा, वरना उसी पे अपना डिस्कशन और बढ़ जाएगा। और दूसरा, ये रिज्यूमे थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद अब बात आती है कि कॉल फिर भी नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिज्यूमे, रिज्यूमे तो बहुत अच्छा बना लिया, पर 400 एप्लीकेशन में वो वन बाय वन देखने जाएगा, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन 200वें नंबर पे पड़ी है, 200 नंबर पे, और वो 1 से 2, 3, 4 देखने जा रहे हैं, जो भी बंदा है या बंदी जो देख रही है हायरिंग मैनेजर आपके। तो अब फर्स्ट 50 प्रोफाइल में मान लो उनको पसंद आ गए कैंडिडेट्स, और उनको कॉल चला गया, और उनको सब चीजें अलाइंड हो गई, और उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि 50 प्रोफाइल में सिर्फ 2-4 ही ओपनिंग थी, वो फाइनल हो गई, क्लोज हो गया, बात खत्म। या उनको इंटरनल रेफरल्स मिल गया और वहां पे प्रोफाइल खत्म हो गई, तो पोर्टल की एप्लीकेशन तो खुली ही नहीं। और पोर्टल की खुली तो फर्स्ट 50-100 ही खुली, और उसके बाद तो मामला फिनिश। ठीक है, ये एक्चुअली रियलिटी है। ठीक है, गलत मत समझना, बट कई बार हम लोग की प्रोफाइल खुलती ही नहीं है, इसलिए नहीं कि प्रोफाइल बेकार है, पर इसलिए कि हमारी अप्रोच गलत है। इसलिए अब ये अप्लाई बटन वाली अप्रोच नहीं चलती है। मैं अपना बता दूं पर्सनली, मैंने पिछले 4-5 साल में अप्लाई बटन नहीं दबाया है सर, बहुत रेयरली दबाया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अप्लाई बटन काम नहीं करता है।
ये एक जमाने में काम करता था, अब नहीं करता है। तो रेफरल इज द बेस्ट थिंग अगेन। अब रेफरल कैसे मिलेगा? जितने आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी उस से चांस बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो अपना लिंक्डइन आपको अच्छा रखना है, रेज्यूमे सही रखना है थोड़ा सा। तो लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहो, बस यही रिकमेंड करूंगा अभी के लिए मैं। और जितना हो सके नेटवर्क्स में अपने एक्टिव रहो, ऑफलाइन नेटवर्क, अपने एक्स कलीग्स के नेटवर्क, जितना हो सके उतने चांसेस बढ़ेंगे आपके रेफरल पाने के या लेने के, वो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है आपका। ठीक है। और लिंक्डइन पे भी मतलब रिलेवेंट लोगों को रीच आउट करो, किसी भी रैंडम इंसान को रीच आउट मत करो। रिलेवेंट लोगों से मतलब आईओएस की ओपनिंग चल रही है किसी कंपनी में, तो उसी कंपनी के आईओएस के लोगों को रीच आउट करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा सेंस बनेगा, बजाय मैं किसी भी रैंडम, कोई मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आईओएस की ओपनिंग है पर मैं किसी टेस्टर को रीच आउट कर रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड। टेस्टर चलो फिर भी थोड़ा रिलेवेंट है, पर मैं बोल रहा हूँ किसी ऑपरेशन के बंदे को या मैं किसी सपोर्ट के बंदे को, डजंट मेक सेंस। ठीक है। तो जितना हो सके टेक्निकल, और उसमें भी जितना हो सके आईओएस से रिलेटेड ही बंदा हो, या उनकी किसी प्रोफाइल, रिलेवेंट प्रोफाइल वालों को ही मैं अगर रीच आउट करता हूँ तो मेक्स मोर सेंस। उनसे फिर आप थोड़ा हेल्प भी ले सकते हो, कंपनी का ओवरऑल कल्चर कैसा है, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, राउंड्स कितने होते हैं, वो आपको उस पर भी थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, करते भी लोग हेल्प करते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो आप। और दूसरी बात लिंक्डइन को क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब क्योंकि आप जब किसी को रीच आउट करते हो रेफरल के लिए, आप जैसे और 50 लोग 60 लोग हम जैसे और रीच आउट करते हैं, राइट। तो वहां पे भी वो बंदा 50-60 प्रोफाइल रैंडमली तो एचआर को नहीं भेज सकते हैं, हमारे पास एक या दो प्रोफाइल ही हम भेजते हैं हमारी रेफरल करते वक्त, राइट। तो फिर वो अगेन कंपेयर करते हैं प्रोफाइल की किसकी भेजे, तो इसलिए जितना आपका रिज्यूमे सही होगा और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जितना एक्टिव दिखेगा, डिसेंट साउंड करेगा, और अगेन इसमें गेटअप प्रोफाइल का भी मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, उतने आपके चांस बढ़ जाएंगे कि वो आपको रेफर करेगा, किसी और को नहीं। और अगर ये चीजें खराब है तो आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे कि वो आपको करे और किसी और को नहीं। और वो आपके फेस पे, मुंह पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आपका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं इसलिए हम आपको रेफर नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बोलता नहीं है, राइट। तो ये कुछ चीजें छोटे मोटे पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। बाकी रेफरल मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो मार्केट खुल के ओपनिंग चल रही है, इंडिया में भी बाकी जगह भी, बट हाँ मैं इंडिया स्पेसिफिक ही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ऑल गुड, कुछ चीजें थोड़ी क्लियर हुई तो थम्स अप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर सेशन टॉपिक पे जाते हैं हम। Cool? तो हाँ, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दूं जो लोग फर्स्ट टाइम आए तो ये जस्ट अ मिनट। तो माय नेम इज कुशल, आई एम करंटली वर्किंग इन Abu Dhabi as a senior as engineer, and I have total experience around 9 years। और ये हमने बैच शुरू किया अराउंड 3 weeks बैक अराउंड, जिसमें अगेन आई मेंशन कि हमने मल्टी थ्रेडिंग वाला टॉपिक्स लिए हैं और सॉफ्टवेयर भी रिसेंटली स्टार्टेड। तो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट इट। एंड या आगे हम लोग एक्चुअली एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, एक या एक्चुअली दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो कि हम चाहेंगे, अभी डिपेंड करेगा आप लोगों में से कितने एक्टिव लोग हैं और जेन्युइनली कितने इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस होगी। और आप ओपन सोर्स भी हम एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो उसमें गिटहब प्रोफाइल्स भी हमारी और अच्छी हो जाएंगी। तो गिटहब और लिंक्डइन को बेटर रखने के लिए ऐसी कुछ चीजें हम प्लान कर रहे हैं, इससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रोफाइल भी बिल्डअप हो जाए। ठीक है। तो उस पर आराम से हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही ब्रीफ करना चाहूंगा आपको, और डीएसए के लेके भी हम कुछ चीजें ला रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। या कूल। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया था, से सम, किसने थे? आई थिंक कौन थे वो, वाई से नाम था समथिंग, याग्निक। आपने किया था क्या हैंड रेस? कुछ पूछना चाहते हैं आप? बाय मिस्टेक हो गया था। कूल, नो वरीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले असिंक कवर्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत इजी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो लेट मी ओपन द डॉक, 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस कार्तिक है। सो हाँ, एक बार स्क्रीन लेट मी नो वंस इट्स विजिबल। कूल। ठीक है। तो असिंक अवेट, अब आई hope already we used to call like APIs normally using callback closures kind of, right? So far in UI kit। ठीक है। अभी हम अगेन, मतलब every time I actually going to compare UI kit approach and SwiftUI approach, and again it's not about async await को आप normal UI kit में भी you can use, right? So it's not about UI kit versus SwiftUI,
but I'm comparing between traditional API calling and this new Swift concurrency वाला thing, which is async await basically. ठीक है, तो इस तरीके से we will going to compare. तो async await का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक इट्स कि इट्स जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, इट्स लाइक यू ऑर्डरिंग पिज्जा ऑनलाइन एंड देन यू ऑक्यूपाइड इन सम कन्वर्सेशन एंड वंस ऑर्डर अराइव तो आपको कॉल आ जाता है, डिलीवरी बॉय कॉल्स यू कि योर ऑर्डर इज अराइव्ड एंड ही इज वेटिंग एक्चुअली एट द डोर, देन यू गो एट द डोर, यू कलेक्ट द ऑर्डर एंड राइट. तो async await वर्क्स लाइक दिस. इट्स सिंपल कि आपने एक ऑर्डर कर दिया, नाउ यू आर वेटिंग वंस ऑर्डर डिलीवर्ड और योर डिलीवरी बॉय अराइव्ड, so he called you, you again you receive your order and then work is done, right? So basically async await में कैसा चीज है, you actually trigger one task, okay, asynchronously. ठीक है, it's like you order pizza on Zomato, so it's like asynchronous task for you because you are not in sync, right? You just triggered it, you placed an order, then you do something else, your order parallelly on some other thread, it's working. Other thread parallelly means restaurant is actually preparing your order, but no dependency as such. You are free, you can do on your own works, your other work, whatever. So restaurant is like your other threads, okay? They are basically taking care of your order, they are preparing it. Once it is ready, then you get a call back. So other thread basically either background thread or whatever, any other thread, they basically prepared your food and then you're giving a call back, okay, the task is completed, now you can take this result. Matlab, take your food means in this context async await ki suppose you do again a API calling, so your API calling once it's completed and you got the response, so you get a call back with the response ki okay, this is your result. But suppose if something gets failed, something goes bad, something failed happens, so it again gives you error also if something goes wrong. But if it's nothing goes wrong, all smooth, all good, then you get actual data which you are expecting from the API call. So that is the way async await works. So we'll go in the examples also, but I'm just briefing about what it is and how it behaves like. So in general, what we do this closer callbacks, but now again, why async await came? Like, what's the major benefit? So in simple word, major benefit is readability, code readability, and also no need to worry of this weak retain cycles and all that thing. Okay, if you remember, normally when we used to call this closer wala thing, API calls, we used to do guard let weak self and all that thing. Remember this thing, weak self, and which is important actually if you're following the traditional approach. But in this, there is no context of this thing. Okay. Another thing in completion callback, you need to make sure all the combinations you are covering. If something is missed, then something bad happens. So it's a bit cluttered code and bit you need to take care of, like more concerned while writing the code, more cautious But here it's not the case. Like so, we'll see what I'm trying to saying you. So let's go. So what is async await or when it's introduced? That is fine. So async is basically a asynchronous call. Okay, nothing like that. Or also it comes through, it comes with this throws keyword basically. So which I said कि it also take care of your error handling. ठीक है, आपको अलग से try catch no need to implement. It is actually internally embedded, you can say. ठीक है, it's a combination coming with async await with the throws and error and do catch everything. So we'll see the example. So suppose here is one function fetch image. So whenever someone calls fetch image asynchronously here mentioned, so this function callback goes asynchronously, and once again the result is ready, it will return as a array of UI image. See the return type UI image array. So you get a lot of or a collection of images basically. Okay. But suppose again API got failed, something goes wrong, then it gives you error also. Okay. So that is the case. So let's go. Await, what means await? Await is simply meaning ki wait for it. Once the result comes, then move ahead kind of thing. So await is basically is a keyword that let us pause execution until an async function finishes. So it's a combination of async await is like asynchronously call happened, but somewhere you need to wait for the result
So you use this await keyword. Okay, it's like that. So we'll see. Go with the example. So suppose here, if you see, I want like this fetch images. Okay, I want a collection of images. So I call this function. It's an asynchronous function. Callback go. Okay, callback matlab initiated this image API. Once you got the collection of array, you get in this particular variable. And again, if it goes wrong, so it will go in the catch thing. Okay, you get the array object and you can see what is error or whatever, like what happened or what goes wrong. So basically, you called some API function, you wait for the result. If result comes, everything is fine, you can move ahead. If something goes wrong, it will go in the catch block. So again, which I've said earlier, it's inbuilt kind of try catch kind of thing, which is covering with the do catch, and try also is here. So it's like basically try on this particular thing. If something goes wrong here, so it will go in the catch block. If all goes well, then this will execute it, right? Like that. So let's move ahead. Is closer a type of async? No, no. Don't confuse with closer. Okay, closer is something different, and this is different. And async is a keyword here. Okay, so basically, again there is one real life example. You ordered a coffee. Await is like waiting for your name to be called. You don't go back to at the counter every second asking, is it done yet? So you can take this example in real life. So whenever we go in Starbucks, what happen normally? We order a coffee and we set our table, and we suppose if you go with your friend, we are busy in the conversation. But once your order is ready, they call you, with your name, right? So it's like that. Okay, await is basically some observer is there kind of, and that observer actually gives you a call back once your order is ready. Once order ready, you take the coffee and again you have drink, right? You have coffee. But you don't need to check again and again every second on the counter. Okay, my order is ready. It's not like that. See, so it's like it behaves like this. So there is a kind of, you can say, comparison. So which I'm saying in the initial key, we are going to compare with the old completion handler callbacks wala thing and with this new async await stuff. So how this works? You remember, like whenever we call these kind of completion closer API calls, so we have a completion closer. So completion closer we define basically array of something, whatever, like basically response type. Okay, whatever the API is going to return the output basically, right? अब basically क्या करते थे, जो भी आपके API का response आने वाला है, वो हम लोग basically यहाँ पे mention करते थे. And you can use this result object, which obviously again Apple last few years they have introduced this, but without this also you can go ahead. But it is recommended to use this result type, in which you can maintain the success response and the error type error object kind of you can map. So here you can see if success comes, so basically it's a, if suppose API goes successfully successfully executed, then you get a again collection of images, right? It's an array of your image. But suppose if something goes wrong, then you will get an object of this error. And here you can also mention a custom error. It's up to you. Okay? So it's like that. Again, but once again, the callback goes, then the nested closer callbacks and all that thing. I think in the below there is an example. Wait just a minute. Yep. So I want to showing this thing. See, nesting is there basically. Even one more good example I have, but here I think I missed it. So suppose here you can mention, see, this is a nesting closer kind of. You call that fetch image function from the outside, right? Actual function is this, ठीक है? ये actual function है, पर इसको जहां से call back दे रहे हो आप, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? इसको हम call करते थे, then you get a callback in this closer, then again you want to suppose again one more callback, तो again you are calling this, again callback function में आओगे, जब response आएगा या error आएगा जो भी है, तो दिस चेन कंटिन्यूस. ये आप समझ पा रहे हो? ये अभी होता है ओल्ड अप्रोच में, ठीक है? ये समझ पा रहे हो? पर इसको कितना क्लीन कर सकते हैं हम लोग? इतना क्लीन कोड हो गया ये, मतलब इतना काम था with this completion callback and all that thing. Now see, I simply call this fetch images. Once this result comes,
again I go with the second API call, and then again this will come, and then finally work is done, right? So there's no nothing like this clutter kind of code. Getting this point? ये समझ पा रहे हो? एक बार thumbs up कर सकते हो इस चीज पे। यहाँ तक क्लियर है चीजें? बाकी कोड में खुद से थोड़ा सा ट्राई करोगे, एक दो मौके पे कॉल करो, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बट कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहे हो चीजें, देख के भी समझ आ रही होगी सिंटेक्स वाइज। ठीक है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स। उल्टे एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी नई चीजें हैं विच एवर एप्पल इंट्रोड्यूस, ठीक है, न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू स्टफ, which again I'm talking about async await, the new Swift concurrency part, also Swift UI, also combine or whatever. We're again going to cover combine and other new topics, whichever Apple recently introduced in the last few years. So why Apple introduced these things? To make things easier, okay? Not to make things hard or complex, to make things more simpler, cleaner, and easier to understand. That's why they introduce these things, right? ये तो आप समझते हो, right? तो इसी के लिए ये बात ध्यान रखो कि अगर हम लोग if we are trying to learn anything new which is introduced in iOS or Swift in last few years, so it is definitely going to be easy as compared to the old approach. It just we haven't tried these things, that's why we are not that comfortable with this kind of code. But it's literally easy. If a new person now if come to iOS, he will see like this async await thing and this callback closer callbacks wala code. So he will find कि यार ये बहुत ज्यादा easy है, async await cleaner है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। और वो कॉलबैक वाला कोड जो पुराना कोड है अपना नेस्टिंग वाला, नेस्टेड क्लोजेस एंड ऑल दैट, वो उसको टफ जाएगा। इवन मुझे भी इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन अराउंड 2017 समथिंग, तो मुझे भी वो क्लटर फील होता था इन iOS व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। ठीक है, सो द पॉइंट इज, आप खुद भी ये सोच सकते हो एज ए थर्ड पर्सन से देखना पिक्चर, थर्ड पर्सन पिक्चर व्यू। इफ समवन न्यू पर्सन इज सीइंग दिस कोड, व्हिच कोड लुक्स मोर इजियर एंड क्लीनर? ऑब्वियसली async await, राइट? तो दैट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो इसलिए सारे टॉपिक एक्चुअली इजी है। तो ये माइंड में पहले मेकअप कर लो अपने, मेंटली प्रिपेयर कि हाँ जो भी हम आगे सीखने जा रहे हैं ऐसे कुछ टॉपिक जो आज तक ट्राई नहीं किए, बट हाँ ये है कि ये एप्पल ने उसको क्लीनर, इजियर, स्मूथ करने के लिए चीजें इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, हार्ड या कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं करी है, राइट? ये मेन पॉइंट है। बस ये है कि कंफर्ट लेवल नहीं आया क्योंकि ट्राई नहीं करी अभी तक। वंस यू स्टार्ट ट्राइंग दीज थिंग्स, यू लिटरली फील कि यार अब हम यही यूज करेंगे और वो पुराना वाला अप्रोच छोड़ देंगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, लिटरली अभी आप async await एक दो बार यूज कर लो अपने प्रोजेक्ट्स में, डे टू डे में यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर करंट जॉब प्रोजेक्ट और फ्रीलांसिंग और व्हाटएवर यू डूइंग राइट नाउ, और इन अपकमिंग कंपनीज और व्हाटएवर इन द न्यू प्रोजेक्ट यू आर स्टार्टिंग, यू कैन यूज दैट थिंग। और इसमें अगेन सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंसी नहीं है सच, दिस इज इंडिपेंडेंट विद नथिंग टू डू विद यूआई किट एंड सॉफ्ट यूआई। ठीक है, तो ये async await वाला कॉन्सेप्ट आप किसी में भी यूज कर सकते हो, there is no dependency as such. Cool, so let's move ahead then. ठीक है, उसके अलावा फिर बाकी नॉर्मल चीजें, कुछ चीजें मैंने मेंशन करी, आप ये डॉक मैं आपको शेयर करूंगा, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, फिर इसमें टास्क वाले पे मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, विल कवर टास्क लेटर ऑन। टास्क एक्टर्स वाला टॉपिक हमारा पेंडिंग है, तो मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, विल कम टू लेटर, मतलब इन कमिंग सेशंस विल कवर दिस टॉपिक। ठीक है, बाकी नॉर्मली async await अवेलेबल है, एक डिप्रिकेटेड या सपोर्ट वाला चीज होता है, वो आप मेंशन कर सकते हो अगर बहुत ओल्ड लेगेसी कोड है तो। बाकी नॉर्मली दिक्कत नहीं आएगी, तो उसी के लिए ये कुछ चीजें मैंने डाली है कि अगर आप ओल्ड कोड को रिफैक्टर कर रहे हो तो। बाकी नॉर्मली अभी जो कोड होता है हमारा उसमें आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी ये देखो कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई है कि नॉर्मली हमको वो सेल्फ कैप्चर करना पड़ता था और वो रिटेन साइकिल वाले इश्यूज इज एक्चुअली नॉट इन द पिक्चर ऑफ async await काइंड ऑफ, राइट? तो वो चीजें हैं यहाँ पे। और रिजल्ट टाइप के लिए चाहिए कि नहीं, तो मैंने जैसे बताया आप वो कंप्लीशन कॉल बैक में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक async await में जरूरत नहीं है कोई चीज की। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ समरी वगैरह पॉइंट दिए हैं, तो वो ही है async। एक तरीके से आप असिंक्रोनस, जैसे हमने आपको याद है सीरियल कॉन्करेंट जो हमने देखा था, आप असिंक्रोनस ब्लॉक में कुछ चला के छोड़ देते हो, राइट? उस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अवेट है कि हाँ उस टाइम पे रिजल्ट का वेट करेगा, जहां पे आपने अवेट कीवर्ड लगाया है, दैट इज समथिंग लाइक योर सिंक्रोनस ब्लॉक। ठीक है, तो आपने एक असिंक्रोनस तो चला के छोड़ दिया, पर एक जगह पे आप वेट भी कर रहे हो उसके रिजल्ट का,
रिजल्ट का वेट मतलब कॉल बैक का वेट कर रहे हो, और अगेन वो पूरे उसको सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखो। तो सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा, और वो वेट करेगा उस असिंक्रोनस वर्क को कंप्लीट होने के बाद जो कॉल बैक मिलेगा, तो आगे चीजें बढ़ जाएंगी वहां से। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो इस चीज को। तो मगर फर्स्ट थ्रो, अगर फर्स्ट एक्सेप्शन दे देगा तो सेकंड कॉल नहीं होगी काइंड ऑफ, क्योंकि वो कैच में चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसा देखो लाइन बाय लाइन, कहाँ पे गया वो अपना कोड, दो कॉल बैक थे वहां पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये वाला चीज कह रहे हो ना आप, हाँ देखो, अगर फर्स्ट में ही यहाँ पे कुछ कैच आ गया, मतलब कोई एरर आ गया, तो ऑब्वियसली सेकंड लाइन पे जाएगा ही नहीं, कैच में आ जाएगा, बात में ही खत्म हो जाएगी, राइट। जो कि मेक सेंस भी बनाता है। अगर फर्स्ट एपीआई फेल हो गया और मान लो सेकंड एपीआई फर्स्ट एपीआई पे डिपेंडेंट है, तो सेकंड एपीआई कॉल करने का सेंस नहीं है, राइट। तो वो चीज है। पर अगर आप मान लो कि आपका डिपेंडेंसी नहीं है दोनों एपीआई में, तो फिर जैसे हम डिस्पैच ग्रुप में करते थे, दोनों अपना अपना इंडी जो चल रहा है, जब दोनों खत्म हो जाते हैं तब फाइनल आपको नोटिफाई में कॉल बैक मिलता था। तो वो यहाँ पे फिर आप सेपरेट कर दोगे, दोनों को फिर एक ब्लॉक में मत रखो। ठीक है, सेपरेट सेपरेट रखो काइंड ऑफ, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। या तो कहाँ पे थे हम, यस। ठीक है, तो ये है कि क्लीनर सिंपलर कोड, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगेन, एप्पल ट्राइड विद दिस थिंग, और कुछ भी नहीं है। और ट्राई कैच वाला चीज को उन्होंने वही ये कर दिया इंटीग्रेट। और कोई आपसे पूछे तो इसमें लास्ट में मैंने यही चीज यहाँ पे मेंशन करी है कि व्हाई शुड आई यूज असिंक अवेट, तो भाई बिकॉज इट मेक्स योर कोड क्लीनर, सेफर एंड इजियर टू फॉलो, जस्ट लाइक रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्लेजर पजल ब्लाइंड फोल्डेड। मतलब कि वो आपका जो वही मल्टीपल नेस्टिंग कॉल बैक्स क्लोजर वाला थिंग, ठीक है, उसमें बहुत तामझाम होते हैं, उसमें डीबग करने में भी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो इसमें बहुत इजी जाता है, क्योंकि इतना सिंपल कोड है ये। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। तो इस तरीके से, तो दैट इज अबाउट असिंक अवेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा व्यू लाइफ साइकिल पे जाएंगे, और फिर हम लोग नेविगेशन के साथ एक एग्जांपल है, मैं एक्सकोड में लेके चलता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी ओपन व्यू लाइफ साइकिल, जस्ट अ मिनट। व्यू लाइफ साइकिल शेयरिंग दिस टैब स्विच हो गया ना, हाँ। ठीक है, देखो व्यू लाइफ साइकिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है। अच्छा मैं बता दूं, आज हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, बट कमिंग सेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स अभी तक हुए और जो आगे भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, तो उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे साथ साथ में, थोड़े पहले ले लेंगे थोड़े बाद में भी लेंगे, ऐसा मिक्स में चलेगा कॉम्बिनेशन। पर अभी हम अगेन बहुत बेसिक्स कवर कर रहे हैं पहले, फिर क्या उसके एडवांस पे भी या थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे भी आएंगे, और उसी के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, दैट वी विल कवर। तो हाँ, अगेन बैक टू दिस, तो जैसे आपको पता होगा कि जब हम फ्रेशर थे या आज भी, यूआई किट के लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले पूछ लेते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले तो नहीं पूछेंगे नॉर्मली, मतलब फ्रेशर से पूछ सकते हैं पर एक्सपीरियंस वालों से नहीं पूछते। बट हाँ, द पॉइंट इज कि वी नो कि द इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू लाइफ साइकिल और व्यू कंट्रोलर वाला लाइफ साइकिल इन यूआई किट, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, बट इज मतलब बेसिक फाउंडेशन है इसका, राइट। इफ अगर अगर आप उसमें कंफ्यूज, इफ यू कंफ्यूज इन दैट कॉन्सेप्ट, तो फिर अगेन मैं कहूंगा कि वी हैव वेरी वीक बेसिक्स इन iOS, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, राइट। तो ऐसे ही स्विफ्टवेयर की भी अपनी एक लाइफ साइकिल है, और ये व्यू के अराउंड घूमती है सारी चीज, इसमें कंट्रोलर नहीं है, इसमें क्लास रेफरेंस टाइप चीजें नहीं है, स्ट्रक्ट चीजें, राइट, इसमें वैल्यू टाइप से सब कुछ। और यूआई किट में हमारा सारा क्लास टाइप का था, वहां पे जो फंडामेंटल का व्यू कंट्रोलर है, वहां पे जो यूआई व्यू है वो क्लासेज है सारी, राइट, रेफरेंस टाइप से। यहाँ पे फंडामेंटली चीजें थोड़ी अलग हो जाती है, सॉफ्टवेयर में स्ट्रक्ट टाइप है, रिकम्प्यूट होती है चीजें, और इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी अलग है, इसके मेथड्स थोड़े अलग है। ठीक है, और कुछ हद तक सिमिलर भी है, तो वही हम देख रहे हैं। तो जैसे व्यू कंट्रोलर में भी इनिट कॉल होता है, यहाँ पे भी इनिट कॉल होता है, जब आपका फर्स्ट टाइम मेमोरी में काइंड ऑफ लोड होगा, इनिशियलाइज होगा, तो इनिट पे कॉल बैक जाएगा। उसके बाद जो बॉडी आपका जो फंक्शन है, या जो भी बॉडी है आपकी स्ट्रक्ट के अंदर, जो कि यूआई, जो कि सॉफ्टवेयर का जो व्यू की जो बॉडी होती है, वो बार बार कॉल बैक जाएगा, उस पर काइंड ऑफ रिकम्प्यूट होगी जब भी स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है, स्टेट एक एट्रीब्यूट है जो हमने देखा था लास्ट सेशन में, राइट। तो स्टेट इज नथिंग बट एक एट्रीब्यूट आपने डिफाइन किया हुआ है आपके व्यू के अंदर। जब भी वो व्यू, सॉरी, जब भी वो दिस स्टेट एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज, तो बॉडी अगेन अपने आप को रिकम्प्यूट करती है, द बॉडी विल गेट्स अ कॉल बैक एंड इट रीइटरेट्स एंड देन अपडेट द यूआई बेसिकली। ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद अगेन ये कंपैरिजन हो रहा है एक्चुअली यूआई किट का ये और इसका ये।
अब जो व्यू डिड लोड है उसका कंपैरेबल एज डायरेक्टली नहीं है, पर जुगाड़ से आप कर सकते हो। देर इज सम वर्क अराउंड, उस पर हम बाद में आएंगे, बट यू कैन डू इट और यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। इसमें बहुत एग्जांपल आपको गूगल करोगे मिल जाएगा कि व्यू डिड लोड का डायरेक्ट कंपैरेबल मेथड स्विफ्ट यूआई में नहीं होता है, सच व्यू लाइफ साइकिल में नहीं होता इधर, बट देर इज सम वेज टू गेट द सेम बिहेवियर लाइक व्यू डिड लोड इन अवर यूआई किट। ठीक है, व्यू डिड लोड कैसा होता था नॉर्मली, इट कॉल्ड वंस लोडेड इन द मेमोरी, और यहाँ पे वैसा एक्चुअल नहीं है, बट आप एक दो फ्लैग वगैरह यूज करके यू कैन अचीव द सेम बिहेवियर, ऐसा एक चीज है। पर जो बाकी हम देख पा रहे हैं, व्यू विल अपीयर, व्यू विल डिसअपियर, वो यहाँ का ऑन अपीयर है, उसमें कॉल बैक आ जाता है अपीयर होने पे, और डिसअपियर डिसअपियर होने पे एक ऑन डिसअपियरिंग का कॉल बैक है काइंड ऑफ, या एक लाइफ साइकिल का फंक्शन है यू कैन से, तो यहाँ पे कॉल बैक आ जाता है। ठीक है, और डी इनएट के लिए अगेन उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, वो टास्क वाला चीज है, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ कंपैरेबल चीजें हैं। इनिट यहाँ पे जाके सेम ही है, लोड व्यू जो वहां पे है वो यहाँ पे काइंड ऑफ बॉडी है, और व्यू डिड लोड का कोई एज सच कंपैरिजन नहीं है सच। बाकी व्यू विल अपीयर व्यू विल डिसअपियर वालों के लिए ऑन अपीयर ऑन डिसअपियर है यहाँ पे। ठीक है, इतना थोड़ा सा अभी समझ के चलेंगे, उसके आगे हम अगेन कोड पे जाएंगे। कोड पे आपको एक्चुअली लॉग्स के साथ देखनी है चीजें। ठीक है, खुद से थोड़ा खेलोगे और लॉग्स देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ऐसे थ्योरेटिकल देखने से नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक्स कोड में जा रहे हैं, वहां पे लॉग्स हैं और वहां पे आपको भी इस पे खेलना है, तो यू विल मोर रिलेट, एक्चुअली रिलेट कर पाओगे ज्यादा चीजें। तो ये व्यू कंट्रोलर वाली है जो तो हम बचपन से कर ही रहे हैं, व्यू विल अपीयर व्यू विल लोड, और ये स्विफ्ट एक अपना है जहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हर जगह लॉग्स डाल दिए प्रिंट स्टेटमेंट, कि अपने को पता चलना चाहिए कहाँ पे कब कब कॉल बैक आ रहा है। ठीक है, तो उससे आपकी चीजें ज्यादा आप क्लियर होती है हम लोगों की, राइट। तो कोड कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, कोड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जब वो चल रहा है तो वो हर टाइम सेम बिहेव करेगा, राइट। तो हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट इधर उधर कर दूं या अपन लोग कुछ गलत समझ ले, कुछ चीजें इधर उधर हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, पर कोड में जब आप रन करते हो और वहां पे जब लॉग्स देखते हो तो हाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि ओके ये ऐसे ही बिहेव करती है, इसका फंक्शनिंग ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, राइट। तो उससे ज्यादा हम लोग श्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनेट में कॉल बैक एक बॉडी में डाला है, जब भी बॉडी में कॉल बैक आएगा यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट रख रहा हूँ, फिर उसके बाद जहां भी मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ इस काउंट का, तो वो आप देख पाओगे कि ये कितना चेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और फिर ऑन अपियर में आपको यहाँ पे कॉल बैक मिलेगा, जब व्यू अपियर होने के बाद यहाँ कॉल आता है व्यू अपियर्ड। और जब ऑन डिसअपियर मतलब अगेन वो व्यू से डिसअपियर हो जाओगे, इसका मतलब या तो आप आगे नेविगेट करके पॉप करके वापस आ रहे हो, समथिंग लाइक दैट, तो डिसअपियर पे कॉल आएगा। ठीक है, जैसे अगेन अपना व्यू डिड डिसअपियर था ना वहाँ पे यूआई किट का, वही है काइंड ऑफ। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि ये इनिट आपका एक ही बार कॉल होता है काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन पे, बॉडी हर बार रिकम्प्यूट होगी बेस्ड ऑन स्टेट पे, या बाकी भी ये हम आगे देखने वाले ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह की जब भी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जो कि काइंड ऑफ एक ऑब्जर्वर प्रॉपर्टीज है, तो whenever some these attribute values change, तो बॉडी फंक्शन बेसिकली कॉल बैक एंड रिकम्प्यूट्स द बॉडी। ठीक है, फिर ऑन अपीयर ऑन डिसअपियर काइंड ऑफ इक्वल है, जैसे मैंने बोला डिड डिसअपियर और डिड अपीयर वाला चीज है। और उसके अलावा आपका ये स्विफ्ट यूआई वैल्यू टाइप्स हैं। ठीक है, तो रिक्रिएट होते हैं जब भी चेंज होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग चलते हैं बाकी नेविगेशन वाली तरफ और उसी में फिर देखते हैं। ठीक है, बाकी ये आप अगेन एक और एग्जांपल है यहाँ पे काइंड ऑफ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है शो चाइल्ड, और उसको जब भी मैं टॉगल कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे अगेन आप इसके लॉग्स देख पाओगे। इसको हम एज इट इज एक काम करते हैं, हम उसको एक्सकोड में ले लेते हैं इस एग्जांपल को, सो यू विल बेटर रिलेट इट। एक मेरा एग्जांपल है ऑलरेडी खुला हुआ है, लेट मी जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द एक्सकोड। जस्ट अ सेकंड, ये तो मैं ये टैब को बंद करता हूँ, अपन एक्सकोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। अच्छा सर, आपने ये डाला था, मैंने अभी देखा आपका क्लोजर एक्सप्लेन। क्लोजर इज नथिंग बट स्वयं की, जैसे आप जब भी कॉल करते हो, अभी क्लोजर वाला कोड देखोगे
तो कॉल के बाद जब उसमें रिजल्ट आ जाता है, मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि सर्वर को आपने कॉल बैक दे दिया, जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो उस क्लोजर के अंदर कॉल बैक आता है बेसिकली, उस तरीके से वर्क करता है। और उस क्लोजर में बेसिकली क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स और एरर होता है नॉर्मली। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इज योर रिजल्ट, मतलब डेटा, एंड एरर इज एरर। ठीक है, अगर एरर आया तो एरर आएगा, वरना एरर निल होता है नॉर्मली, अगर सब सही गया तो इन दोनों में से एक काइंड ऑफ निल होता है, ऐसा कह सकते हो। इधर डेटा होगा तो एरर निल होगा, और एरर होगा तो डेटा निल होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हाँ अभी हम लोग, सॉरी अगेन दिस हो गई, एक सेकेंड। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो एक बार बताना। आई एम शेयरिंग अगेन। ये इसका आज फिर सीन हो रहा है कि मैं इसका यार एक बार सेटिंग देखूंगा, समथिंग कुछ तो वो हुआ है। मैंने इसके कुछ गेस्टर्स ऑन किए थे, आई थिंक उस वजह से दिक्कत होगी। हाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन एवरीवन? हाँ ठीक है, तो अभी एक्सकोड पे चलते हैं। तो हम लोग सिर्फ लॉग्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं क्विकली यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर रहा हूँ, और इस पेरेंट व्यू को मैं चिपका देता हूँ। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड। हाँ, ये क्या हो रहा है फिर से, स्क्रीन क्यों जा रहा है बार बार? इसको मैं साइड में खोल के रखता हूँ एक बार। हम्म, हाँ, मुझे दिखना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मैंने सिंपली रन किया है। सिमुलेटर पे जाएंगे और मैं लॉग्स पे जाता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉग दिखेंगे। तो ये देखो पीछे क्या क्या प्रिंट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा लॉग, राइट यहाँ पे। हाँ, तो एक बार फिर से रन करते हैं, देखना अभी चाइल्ड व्यू के कॉल आ रहे हैं। और चाइल्ड व्यू में कब कब कॉल आ रहा है वो देखना चाह रहा हूँ। वैसे पेरेंट व्यू का भी देख सकते हो, बस यहाँ पे लॉग नहीं लगे हुए, बट ठीक है चाइल्ड व्यू को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आपको एक व्यू की लाइफ साइकिल समझ आएंगी। तो अभी इनिशियली पेरेंट है, ठीक है। जैसे ही मैंने शो पे क्लिक किया तो चाइल्ड व्यू पे जा रहा है। चाइल्ड व्यू पे गया तो जैसे ही चाइल्ड व्यू पे उसका इनिट कॉल हुआ, फिर उसकी बॉडी कंप्यूट हुई, और फिर वो अपीयर्ड हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो जा रहा है। देखो ये चाइल्ड व्यू का कोड आप देख सकते हो। दिस इज नथिंग बट ये चाइल्ड व्यू, मतलब एक अलग स्क्रीन है, ऐसा समझो यूआई किट वाले लोग। एक मेरी फर्स्ट स्क्रीन थी जो कि पेरेंट व्यू है आपका, दिस इज योर फर्स्ट स्क्रीन एंड दिस इज योर सेकंड स्क्रीन। ठीक है, मतलब वन कंट्रोलर सेकंड कंट्रोलर। तो जैसे सेकंड कंट्रोलर पे हमने पुश करा तो उसका इनिट फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसका ये दोनों, ये उसकी बॉडी कॉल हुई, और बॉडी के बाद आपका व्यू डिड अपीयर ऑफ व्यू। हाँ डिड अपीयर ही, मतलब डिसअपियर तो अभी नहीं हुआ, पीछे जाएंगे तब होगा, राइट। तो इस तरीके से है। तो अभी मान लो पीछे जाता हूँ तो देखना अभी आपको डिसअपियर का कॉल बैक मिलेगा। लेट्स गो टू बैक। ये देखो डिसअपियर का कॉल बैक आ गया, राइट। फिर से आते हैं, फिर से फ्लो आना चाहिए, ये देखो फिर से मैं स्क्रीन पे आया तो वापस से इनिट कॉल हुआ, फिर ये क्यों? क्योंकि जैसे हम पीछे जा रहे हैं तो काइंड ऑफ पॉप कर रहा है, तो मेमोरी से निकल जा रहा है। तो इसलिए जब भी वापस आएंगे तो इनिट पे कॉल आएगा ही, क्योंकि मेमोरी से निकल गया, फिर से उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिट पे तो कॉल आएगा, और फिर बॉडी में। अब ये इसमें ये टॉगल का मुझे एक बार देखना था, हाइड और शो ही इन्होंने किया हुआ है। ठीक है कूल, चाइल्ड व्यू का क्लियर हुआ, बट अभी के लिए ठीक है। इनिट पे कॉल, फिर आपका बॉडी कंप्यूट, और आपका अपीयर डिसअपियर वाला चीज। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लूंगा, बट अभी चलो कोई नहीं, मैं नेविगेशन पे जाता हूँ पहले। तो उसमें फिर आप ना, इवन आप अगेन खुद से भी ट्राई करो ये चीजें, कि आप एक प्रॉपर्टी ले लो, उसको चेंज करते जाओ बार बार, और बॉडी के अंदर दिखा रहे हो। तो जैसे मैं इवन यहाँ पे भी आपको अगर एग्जांपल दूं, तो व्हाट वी कैन डू, एक एक कुछ भी एट्रीब्यूट ले लो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं काउंटर का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ इसीलिए आपको।
एंड यहाँ पे मुझे एक बटन देना पड़ेगा, बट ठीक है। इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, एक बार जस्ट क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, काउंटर 0 है। ओके, बटन तो मैंने उसमें डाला नहीं है। यहाँ से रिटर्न हो गया ना वो, इसको उसमें ले लो भी। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, ये देखो। ठीक है, मैंने पहले वो स्टार्ट मिस कर दिया था। तो पहले क्या हो रहा था कि रिटर्न डायरेक्ट टेक्स्ट ही रिटर्न हो रहा था, तो ऑब्वियसली बटन नहीं दिख रहा था। तो वी स्टैक वगैरह ये सब कैसे वर्क करते हैं, इस पर हम आएंगे। अभी के लिए इतना समझो कि पूरा ये व्यू में, इससे आपको याद है यूआई किट में हम स्टैक व्यू लेते थे या स्क्रॉल व्यू, उसके अंदर ही सब कुछ डाल देते थे, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। मैंने एक वर्टिकल स्टैक ली, उसमें एक टेक्स्ट लिया, मतलब एक लेबल, और आपका एक बटन, यूआई बटन जो होता था हमारा, उस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ लॉक्स, कि जब भी मैं इस एट्रीब्यूट को बदल रहा हूँ, स्टेट के एट्रीब्यूट को, तो कैसी चीजें ट्रिगर हो रही है वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखना, जैसे मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, तो देखो पीछे क्या प्रिंट हुआ, बॉडी रिकम्प्यूटेड। फिर से स्क्रीन हटा, क्या दिक्कत है, एक मिनट जस्ट वन सेकेंड, हो गया, हाँ। ठीक है, तो अभी देखना आप, जैसे ही हम लोग क्लिक किया इंक्रीमेंट पे, बॉडी रिकम्प्यूट, फिर से क्लिक किया, बॉडी रिकम्प्यूट, बॉडी रिकम्प्यूट। और अभी पीछे जाता हूं मैं, डिसअपियर पे कॉल आ गया, वापस मैं शो पे आता हूँ, वापस तीनों फंक्शन अगेन कॉल हुए, इनिट हुआ, फिर बॉडी फर्स्ट टाइम तो रिकम्प्यूट होगी, और फिर अपीयर्ड वाला कॉल बैक आ गया। पर अब जब मैं बार बार काउंटर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो सिर्फ बॉडी रिकम्प्यूट कॉल हो रहा है, मतलब सिर्फ बॉडी कंप्यूट हो रही है बार बार, और बॉडी पे ही कॉल बैक जा रहा है। ठीक है, इससे आप खुद रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कैसे वर्क कर रही है चीजें। तो जब भी स्टेट एट्रीब्यूट, जैसे मैं बोला, और भी जैसे हम आगे देखेंगे, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट और वो सब जो होता है, जिनसे आपकी चीजें बाइंड है स्टेट के साथ, जो आपकी स्टेट मेंटेन कर रहा है, वो अगर स्टेट चेंज होती है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो आपकी बॉडी एक्चुअली रिकैलकुलेट करती है और अपना व्यू अपडेट कर लेती है। ठीक है, गेटिंग इट? ये क्लियर हो रहा है? एक बार थम्स अप कर सकते हो आप लोग। कूल। एवरी टाइम कंप्लीट स्क्रीन रीलोड्स? नहीं, इस पे मैं, आप खुद एक बार गूगल करना, ये इस पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, कि पूरा स्क्रीन रिलोड होता है या कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है, ये आप एक बार खुद पढ़ के, इस पे रिसर्च करके मुझे बताना। भाविन बोल रहे, देयर इज एन इश्यू इन द मीट शेयरिंग, सेम हैपनिंग फॉर मी एज वेल। ओके, हाँ हो सकता है, मैंने न्यू ओएस थोड़े टाइम पहले डाला था, पर कुछ दिन पहले सब सही चल रहा था, इवन आफ्टर न्यू ओएस इंस्टॉल। पर अभी ये 2-5 दिन से ही इश्यू हो रहा है, मतलब लास्ट सेशन में हुआ था और आज हो रहा है, उसके पहले नहीं हो रहा था सच। पर ठीक है, विल सी। कूल, हाँ, थम्स अप ना, यहाँ तक क्लियर है चीजें? तो क्विकली हम थोड़ा सा नेविगेशन देख के आज के लिए रैप अप करेंगे फिर। और हम लोग नेविगेशन का कोड आई हैव, तो उसको भी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, उसको मैं बंद कर रहा हूँ, और ये सारे प्रोजेक्ट सैम्पल कोड्स और असाइनमेंट, ये जो डॉक है मतलब नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो दूसरा कोड बेस का मैं पहले रन करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग। इसको भी हम एक बार, मैं जस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो नेविगेशन दिख रहा होगा, वो मैं चलो। तो नेविगेशन यहाँ पे बहुत इजी है, सिमिलर टू यूआई किट। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवन अपना यूआई किट का भी बहुत सॉर्टेड था, नेविगेशन स्टैक पुश पॉप वही यहाँ पे भी होता है, तो वही हम देखेंगे, मतलब इजी है काफी। देखो ये प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ नहीं, एक लिस्ट आ रही है जो कि आर्ट वर्क्स करके एक लिस्ट में, मतलब जो जो आर्ट वर्क्स है मैं अंदर खोल के दिखा दूं, जैसे समथिंग पेंटिंग्स है काइंड ऑफ बेसिकली, ठीक है, या कुछ तो ऐसा आर्ट है समथिंग। तो अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर एक स्क्रीन है अपनी, एक व्यू है, एक स्क्रीन है, जिसमें एक इमेज में दिखा रहा हूँ, कुछ लेबल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और पीछे जा रहा हूँ तो अपनी मेन स्क्रीन पे आ जा रहा हूँ, और एक कंटेक्स्ट मेनू मैंने डाला हुआ है, वो भी मैं दिखा दूं। जैसे मान लो कंटेक्स्ट मेनू इज नथिंग बट आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो एक मेनू खुलता है काइंड ऑफ, जो कि सॉफ्टवेयर ने अपने को दिया है, यूआई किट में सच नहीं था ये चीज। तो जैसे मैं देखो उस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से खुल जाता है ये, दिस इज लाइक योर ड्रॉप डाउन लिस्ट काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है। अब इस पे अगर आप मैं किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, लाइक जैसे लव इट पे मैंने किया तो देखो ये लव इट यहाँ पे अपेंड हो गया, राइट। ऐसे प्योर वाटर को मैंने, इसको भी मैं क्लिक करता हूँ और इस पे मैं कर देता हूँ वाव, तो ये देखो वाव यहाँ पे आ गया है। अब ऊपर एक फिल्टर बनाया हुआ है, जैसे ही मैं जो जो मैंने एक हाइट विजिटेड नाम से ये बनाया हुआ है, जो जिसका मतलब ये है कि जो जो मैंने देख लिया उस पर तो मैंने रिएक्शन दे दिए, पर जो अभी तक नहीं देखे उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये उसको फिल्टर कर देगा, जो जो अभी तक नहीं देखे मैंने, मतलब जिन पे कोई रिएक्शंस नहीं है। तो लेट मी क्लिक हाइट विजिटेड, तो देखो अभी वही सारे आ रहे हैं जिन पे कोई रिएक्शंस नहीं है, वापस को टैप करूंगा तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इतना ही है बस फंक्शनलिटी वाइज, मैं आपको जैसे कंटेंट दे रहा था। तो कोड में चलेंगे, कोड में क्या हो रहा है लेट्स सी। कोड में जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नेविगेशन इज नथिंग बट आपका, आप एक डेस्टिनेशन डिफाइन करते हो, एक स्टैक के अंदर डालते हो, वो चीज़ है। तो देखो यहाँ पे भी एक नेविगेशन स्टैक मेंटेन होती है, ये देखो, दिस इज नथिंग बट ए नेविगेशन स्टैक। तो वहां पे अपनी जैसे नेविगेशन कंट्रोल था, नेविगेशन कंट्रोलर होता था, वैसे ही काइंड ऑफ यहाँ पे नेविगेशन स्टैक है। और वहां पे भी इंटरनली स्टैक मेंटेन होती थी, यू कैन गेट द ऑल द व्यू कंट्रोलर्स, राइट। और उसमें फिर पुश पॉप के साथ हम खेलते थे, डायरेक्टली पॉप टू फर्स्ट कंट्रोलर वगैरह भी चीजें थी, या पॉप टू कंट्रोलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ ये भी थी। मतलब आप मान लो कि बहुत एक फ्लो में आगे आगे आपको किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे डायरेक्टली पॉप करना है, तो वो भी चीजें थी वहाँ पे, राइट, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे भी यही सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो नेविगेशन स्टैक है नॉर्मली, पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक वैल्यू के साथ मैप करते हैं, एक डेटा टाइप के साथ मैप करते हैं यहाँ पे स्विफ्ट यूआई में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्ट वर्क को ही मैंने एज अ वैल्यू दे दी। आर्ट वर्क आपका कुछ नहीं है, आर्ट वर्क हमारी क्लास बनी हुई है, ये देखो, जैसे हमारा एक्सट्रक्ट है, देखो एक एक पर्टिकुलर मतलब डेटा टाइप है, कस्टम डेटा टाइप है ये। तो ये मेरा मॉडल है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस मॉडल में ही मैंने आर्टिस्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन इस तरह की डिटेल्स है। ये मॉडल अभी यहाँ पे लोकली लोड हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो आप बाद में देख सकते हो, लोकल डेटा, यहाँ पे कोई एपीआई कॉल नहीं हो रहा है सच। हाँ पर द पॉइंट है, अभी इस पे आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जब भी आप क्लिक कर रहे हो यहाँ पे नेविगेट कैसे कर रहा है, जब भी मैं, और ये एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट हमने देखा ही था अभी लास्ट उसमें। तो इस लिस्ट में हर एक आइटम है, हर एक आइटम को मैंने एक नेविगेशन लिंक बना दिया। नेविगेशन लिंक इज नथिंग बट आपने एक हाइपर लिंक बना दिया है। इट्स लाइक आपका, जैसे हम लोग नहीं करते कि हम वेब के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ या और भी किसी कंटेक्स्ट में कह लो, टीम्स वगैरह स्लैक पे भी आप हाइपर लिंक बना लेते हो, राइट, गूगल ड्राइव में भी, गूगल डॉक में, एनीथिंग एनीवेयर। तो वो इस तरीके से वर्क करता है ये। इसको वहां आ गया एक से। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि आपने बेसिकली एक हाइपर लिंक बना रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि भाई ये एक टैपेबल लिंक होगा और इसके क्लिक पे कहीं तो नेविगेट करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा कहने का पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे ये हो रहा है कोड में, अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि जो भी मेरा लिस्ट के अंदर जो आइटम होगा, ये आइटम देखो नेविगेशन लिंक इतना बड़ा ब्लॉक है। तो कहने का पॉइंट है कि जितना भी होगा ये तामझाम, इसके क्लिक पे कुछ तो एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट होके कैसे जाएगा, क्या होगा, वो डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा आपका, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। तो नथिंग बट इसको एक बार बहुत सिंपल वे से कंटेक्स्ट मेनू को भले अवॉइड करो, ये अभी के लिए आप भले मैं इस कोड को हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो अननेसेसरी। तो मैं अभी के लिए इसे हटा दिया, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ सब लाइन में साइड में, ठीक है। ये कंटेक्स्ट मेनू का कोड ही हटाया मैंने सिर्फ। तो वापस एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली नेविगेशन लिंक इज नथिंग बट आपने एक हाइपर लिंक बना दिया। अब इस हाइपर लिंक में अंदर मैंने सिर्फ टेक्स्ट रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हो। टेक्स्ट मतलब लेबल रखी है, आप बटन रख सकते हो, और भी कोई कस्टम व्यू रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस पे जब भी क्लिक होगा तो क्लिक होने पे डेस्टिनेशन अगेन आपका, जैसे मैंने बोला ये हाइपर लिंक की तरह वर्क कर रहा है। जब भी आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे कॉल बैक आएगा आपको, और कॉल बैक आके अंदर वो क्या बोल रहा है कि अगर उसको इस टाइप की वैल्यू मिलेगी तो वो डिटेल व्यू पे चला जाएगा। अब अगेन इसमें आप स्विच केस लगा के
हर तरह के टाइप के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये आपको एप्पल ने इसमें दिया है कि बेस्ड ऑन डेटा टाइप, अगेन बेस्ड ऑन डेटा टाइप और बेस्ड ऑन वैल्यू आपके ऊपर है, उस अकॉर्डिंगली यू कैन कॉन्फ़िगर योर केसेस बेसिकली कि आपको कहाँ नेविगेट करना है। लाइक सिमिलरली हम इन टैब व्यू में करते हैं हम लोग, या मान लो कि 4 बटन है, वन आपको प्रोफाइल व्यू पे लेके जा रहा है, अनदर इज फीड व्यू, अनदर इज सेटिंग व्यू, इस तरीके से समथिंग। और अभी यहाँ पे कंटेस्ट में एक ही है, पर आप इसको एक्सप्लोर करना, अगेन खुद से थोड़ी चीजें ट्राई आउट करनी है, तो उसके साथ आप खेलना, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन बेसिक बता रहा हूँ पहले। इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग कि आपने एक नेविगेशन लिंक क्रिएट कर दिया, मतलब कि हाइपर लिंक, उस पर जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ कॉल बैक आएगा। कॉल बैक में बेसिकली अगर आप देखोगे, जब भी मैं नेविगेशन लिंक क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ, आर्ट वर्क ही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कॉल बैक में ही अंदर जाएगा। वरना अगर मान लो मैंने कोई दूसरी वैल्यू भेजी तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। इस तरीके से समझो आप, ये क्योंकि डेटा टाइप के साथ मैप्ड हुआ हुआ है ये, ठीक है। पर आप बोले कुशल अगर मुझे स्ट्रिंग भेजना है तो मैं अगेन फिर स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा, जो कि अभी के लिए कॉन्फ़िगर नहीं है, पर यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ऐसे एंड पॉइंट्स रखने हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स, तो अभी के लिए हम आर्टवर्क पे खेल रहे हैं, तो आर्टवर्क के लिए सिर्फ कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो आर्टवर्क के साथ कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ पे कॉल बैक आएगा, और कॉल बैक के अंदर मैं चाहूँ तो अगेन इस आर्टवर्क की वैल्यू के बेसिस पे भी आई कैन मैनेज माई नेविगेशन। और इन डिफॉल्ट इन जनरल अगर मुझे सभी आर्टवर्क के लिए एक सेम व्यू पे ही जाना है, तो जैसे यहाँ पे हो रहा, राइट, कोई भी आर्टवर्क का कोई भी ऑब्जेक्ट आए, आई एम मूविंग टू डिटेल व्यू स्क्रीन, राइट। तो इसमें मैंने एज सच कुछ कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया, बट यू कैन डू इट और वी कैन डू इट, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। तो अभी के लिए आपका फिर ये डिटेल व्यू खुल रहा है और डिटेल व्यू पे जा रहा है बेसिकली। उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके नेविगेशन बार को लेके हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर ही आर्टवर्क दिख रहा है। अगर मैंने आपको बताया था, अगर मैं ये इनलाइन हटा दूं तो ये पूरा बड़ा टाइटल दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर आपका टाइटल दिया आर्टवर्क्स, तो ये जो आर्टवर्क्स टाइटल आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। इसको आप बोल सकते हो कि आर्टवर्क्स टाइटल अपडेटेड, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आपको जब दिखना चाहिए कि यहाँ से चीजें रिलेट हो रही है इस तरीके से। फिर बार आइटम में मैंने एक हाइड विजिटेड जो डाला है वो यहीं से डाला है, ठीक है। एक टॉगल है वो बेसिकली, तो वो यहाँ से डाला हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो हाइड विजिटेड दिख रहा है, ये एक्चुअली मैंने नेविगेशन बार आइटम में डाल दिया। तो ये जो भी ऊपर नेविगेशन बार को कॉन्फ़िगर करने का कोड यहाँ पे होता है बेसिकली, आपके इसके बाहर, ठीक है। नेविगेशन इसके स्टैक के बाहर, मतलब स्टैक के अंदर बट इसके बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है। तो पॉइंट ये है कि आपका टाइटल आपने कॉन्फ़िगर किया, डिस्प्ले मोड किया, और बार आइटम में अब अगेन आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हो, अभी के लिए एक ही डाला है, तो अगेन यू कैन ट्राई। तो उसमें मैंने एक डाला और इसके क्लिक पे व्हाट हैपनिंग, ये टॉगल हो रहा है और टॉगल के बेसिस पे वो लिस्ट हो रही है। तो मैं आपको दिखा दूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं लिस्ट को बेसिकली। ये देखो शो आर्ट यहाँ पे एक्चुअली चीज हो रही है। तो ये लिस्ट में हम पता है कौन सा डेटा पास कर रहे हैं, शो आउट पास कर रहे हैं। शो आउट क्या कर रहे हैं, शो आउट क्या कर रहा है, शो आउट इज नथिंग बट आपका हाइड विजिटेड के टॉगल पे चल रहा है ये। जब ये टॉगल ट्रू होगा तो फिल्टर करके भेजेगा वो, और फॉल्स होगा तो पूरी लिस्ट भेज देगा इस तरीके से। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी कि ये मतलब काइंड ऑफ फॉल्स है तो पूरी लिस्ट जा रही है, पर अगर मैं इसको क्लिक करके ट्रू कर देता हूँ तो ट्रू करने पे जिनका रिएक्शन एम्प्टी है वही लिस्ट जा रही है। तो यहाँ पे कोड में आप देख सकते हो ये चीज। अगर मेरा ये फ्लैग ट्रू है तो व्हाट आई एम डूइंग, आर्ट वर्क्स पे फिल्टर लगाया, फिल्टर अपना हायर ऑर्डर फंक्शन, उसका मैंने क्या किया अंदर, जिसका रिएक्शन इज एम्प्टी वो सारे मैंने रिटर्न कर दिए। मतलब मैंने इस लिस्ट को फिल्टर कर दी बेस्ड ऑन जिनके रिएक्शंस एम्प्टी है, राइट। तो अगर ये हाइड विजिटेड फ्लैग ट्रू है तो ये वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब फिल्टर्ड लिस्ट होगी रिटर्न। और अगर फॉल्स है तो पूरी लिस्ट एज इट इज में रिटर्न कर दूंगा, जो भी मेरी पूरी लिस्ट है ओवरऑल, राइट। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो कॉल बैक जा रहा है और वो वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज होके लिस्ट अपनी अपडेट हो जा रही है। तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि स्टेट एट्रीब्यूट आप देख पा रहे होंगे, तो जब भी आप इसमें चेंज करोगे तो बॉडी में कॉल बैक जाएगा और रिकम्प्यूट होगी बॉडी, राइट। इस वजह से यहाँ पे जैसे हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो अपनी ये व्यू अपने आप अपडेट हो रहा है, राइट। तो ये सारा मेंटेन हो रहा है स्टेट के एट्रीब्यूट की वजह से, ठीक है। और फिर बाकी जो आपका हम रिएक्शन दे रहे हैं तो वो यहाँ से कॉल बैक जा रहा है। वो कंटेक्स्ट मेनू अभी तो हटा दिया मैंने, पर कंटेक्स्ट मेनू बेसिकली ये जो कोड है इसको भले डाल दो वापस, ये कोड जो हमने हटाया था मैं इधर ही अंडू कर देता हूँ। ये देखो, तो कंटेक्स्ट मेनू बेसिकली अभी के लिए इतना समझो, जैसे मैंने बोला लॉन्ग प्रेस पे जो आता है, ये जो चीज आ रही है वो यहाँ से आ रही है। कंटेक्स्ट मेनू में क्या किया इन्होंने, सिंपली 3 बटन डाल दिए और हर बटन की कॉल बैक में सेट रिएक्शन कॉल जा रहा है। और सेट रिएक्शन क्या कर रहा है, अंदर जाके आप देख लो, एक प्राइवेट फंक्शन लिखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो आपका वो रिएक्शन, वो एक तो डेटा को अपडेट कर रहा है मॉडल को, और वो मॉडल को अपडेट कर रहा है, बेस्ड ऑन मॉडल को अपडेट किया
तो वो रीलोड हो गया, रीलोड होके वहां पे आपको ये दिखने लग जा रहा है। अब मैं इसका रिएक्शन बदल सकता हूँ, ऐसे देखो किंग डेविड है ये, इसको मैं अगर यहीं पे क्लिक करके इसको लव इट कर दूंगा तो ये देखो यहाँ पे बदल गया ये। तो नथिंग बट आपको मॉडल अपडेट हो रहा है बेसिकली। Can't see your screen. ओह सॉरी सॉरी, यस थैंक्स। तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो बस अब हम रैप अप करेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया आज। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा था, सेट रिएक्शन फंक्शन नथिंग बट आपका बेसिकली मॉडल को अपडेट कर रहा है। और मॉडल अपडेट अगेन आपने देखा होगा, जैसे ही मेरे मॉडल अपडेट हो रहा है तो अगेन ये एक स्टेट एट्रीब्यूट का पार्ट है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, स्टेट एट्रीब्यूट मेरा चेंज होगा, चेंज होगा तो फिर पूरा मेरा अपना लिस्ट अपडेट हो जाएगा, राइट, काइंड ऑफ उस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो आज के लिए हम यहीं पे रैप करते हैं, थम्स अप कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक चीजें देखी है, आगे और उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स में हम अगले सेशंस में आएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेंगे। कि हम लोग आज क्या देखे हैं, नॉर्मल आपका असिंक कवर्ड अगेन बहुत बढ़िया चीज है। असिंक कवर्ड आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, और खुद से आपको ट्राई करना है थोड़ा सा तो आप और रिलेट कर पाओगे। असिंक कवर्ड वेरी वेरी इजी सिंपल थिंग। फिर आपका व्यू लाइफ साइकिल भी इसकी इजी है, थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लो अगेन, यू विल रिलेट मोर। और तीसरा आपका बेसिक आपका नेविगेशन वाला चीज, जिसमें सिंपली नेविगेशन लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक होता है, उसके बेसिस पे फिर हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डेस्टिनेशंस को, और वो डेस्टिनेशन के बेसिस पे हम लोग मूव करते हैं आगे स्क्रीन पे। और बैक यहाँ पे अपने आप भी हैंडल हो जाता है, और आप कस्टम भी कर सकते हो उस पर। हम चलो अगले सेशन में लेते हैं उसको। और एक पाथ वाला भी कॉन्सेप्ट है जो आज मैंने अभी नहीं ले पाया हूँ, लेट हो गया, बट हम अगले सेशन में पाथ वाला कवर करेंगे। इन द मीन टाइम ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट। पाथ इज नथिंग बट आपका एक पाथ इज बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपकी सारी नेविगेशन, जितनी भी अवेलेबल नेविगेशन है, जितनी भी स्क्रीन है आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट में, उसका एक एरे आप मेंटेन कर सकते हो। और वो फिर आपका उस तरीके से मेंटेन होता है कि अगली वाली स्क्रीन कौन सी होगी, पिछली कौन सी है, उस तरीके से आपकी लिस्ट मेंटेन होती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है वो, उसमें हम आगे आएंगे, बट अभी के लिए इतना आप समझ के ले सकते हो। और आगे अगर उसका एक एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए अब अगेन अपना जो असाइनमेंट चल रहा है, अगला सेशन हम लोग वीकेंड पे लेंगे। कल ब्रेक है, मोस्टली सैटरडे संडे को लेंगे। आई विल अपडेट यू विद द टाइमिंग्स। तो जब तक 2 दिन का टाइम जो है आपके पास, मेक श्योर जिनके पिछले कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है थोड़ा कवर कर लो, और उसके साथ साथ आप असाइनमेंट अपना अगेन आज जो हमने सीखा है और पहले के भी जो टॉपिक उसकी थोड़ा हैंड्स ऑन करो, थोड़ा खुद उसके साथ खेलो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, उसके और आगे की चीजों पे हम अगले सेशंस में लेंगे, और इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी फिर हम आएंगे। ठीक है, कूल। तो थैंक्स एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। या थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।